Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme Psychoanalysis with special reference to structure of personality. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट ऑफ साइको एनालिसिस का डिस्कस किया. दैट पार्ट वाज टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, जिसमें हमने 3 लेवल्स डिस्कस किए: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. इन टुडेज लेक्चर we will discuss another part that is known as structure of personality, जिसे हम डायनामिक एस्पेक्ट भी कहते हैं. Dear students, keeping in view the Freudian psychology, structure of personality contains 3 different parts, such as id, ego, and superego. It means हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो 3 एलिमेंट से बन चुकी है: id, ego, and superego. As per the personality psychology, our personality is dynamic. It means it changes. It fluctuates from time to time or situation to situation. It means human personality is in continuous flux. There is complete dynamism in the individual's personality. Keeping in view the Freudian psychology, according to Sigmund Freud, human psyche is composed of these 3 elements. I mean to say you id, ego, and superego. The 3 structures of personality makes human behavior complex. अगर हमें human nature को समझना है, we have to focus on these 3 elements, जिन्हें सिगमंड फ्राइड कहता है these are the 3 tires. यानी कि ये 3 व्हील है हमारी पर्सनैलिटी में, या हम इन्हें कह सकते हैं 3 आर्म्स. जिस तरह से 3 पहियों वाली गाड़ी होती है, एवरी व्हील कंटेन्स इक्वल इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस. अगर हम 3 व्हीलों में से एक व्हील को बाहर निकालेंगे, द व्हीकल कैन नॉट रन. सेम इज द केस विद पर्सनैलिटी. As per the Freud, our personality is incomplete without any arm. I mean to say you id, ego, and superego. All the 3 arms or 3 tires contains equal importance in the human psyche or human personality. ये 3 imaginary concepts सिगमंड फ्राइड ने अपनी बुक में डिस्क्राइब किए. दैट फेमस बुक इज नोन एज साइकोपैथोलॉजी. किस तरह से एक ह्यूमन बिहेवियर जो है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ id, ego, and superego. डियर स्टूडेंट्स, जब इन 3 आर्म्स के दरमियान, आई मीन टू से यू id, ego, and superego के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट होता है, या हम कह सकते हैं whenever there is consensus or mutual understanding between these 3 arms, तो उस वक्त पर्सनैलिटी बैलेंस्ड होती है, या हम कह सकते हैं नॉर्मल पर्सनैलिटी होती है. बट व्हेन देयर इज द क्लैश, देयर इज द रिफ्ट और कॉन्फ्लिक्ट which is existing in between id, ego, and superego, it results abnormality, यानी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. उस वक्त एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो होती है,   वो
बन जाता है उस वक्त। गोया कि नॉर्मल या बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है ईद ईगो और सुपर ईगो के दरमियान एक कंसेंसस होनी चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए या रहना चाहिए। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं रहा, क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, एट दैट टाइम देयर विल बी द डेफिनेटली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उस वक्त पर्सनैलिटी जो है वो मॉल एडेप्टिव बिहेवियर डिस्क्राइब करेगी। डियर स्टूडेंट्स, we will give the detailed account of these three arms of personality one by one. Number one, id. Id is the first part of our personality. अगर id को समझना है, we have to focus on its characteristics. Number one, inborn and biological. Id is inborn and biological part of our personality, based on the pleasure-seeking principle, in order to reduce the tension. Dear students, id is not artificial. ये inborn और biological है, यानी कि by birth एक बच्चे के साथ id होता है. When the child remains in the womb of the mother, बच्चा जब मां की कोख में होता है, उस वक्त भी उसके साथ id होता है. Id has having complete biological orientation. ये हमारे बिहेवियर को बायोलॉजिकली ऑपरेट करता है. फॉर इंस्टेंस, जब एक इंडिविजुअल को भूख लगती है, when an individual has having the appetite or hunger, तो id इसके बिहेवियर को प्रॉम्प्ट करता है. यू हैव टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ हंगर ड्राइव. अब इसे फूड चाहिए, तो फूड अगर ना मिला, अकॉर्डिंग टू फ्रूडियन साइकोलॉजी, जब भी कोई नीड या डिजायर फुलफिल नहीं हो जाएगा, इट गिव्स बर्थ टू द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज. I mean to say you psychological problems that may be in the form of tension, anxiety, stress, inferiority, weariness, insecurity. ये all mental health related issues effects to the individual. यानी कि टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ईद की जो डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए. यहां पर अब सवाल फिजियोलॉजिकल नीड्स का नहीं है. Apart from physiological needs, equal importance is also given to the sex as per the Freudian psychology. क्योंकि फ्राइड को सेक्स साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. As per the Freud, sex is the fundamental or strongest biological need. और इस नीड या ड्राइव को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. When this need is not gratified, it leads an individual in the psychological state. Automatically एक इंडिविजुअल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, एंगर का शिकार हो जाता है, टेंशन का शिकार हो जाता है. तो नटशेल में हम कह सकते हैं id is inborn and biological. ये एक ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉम्प्ट करता है ताकि एक नीड सेटिस्फाई हो जाए. अगर नीड सेटिस्फाई नहीं हो गई तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी. साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करने के लिए इंडिविजुअल हैज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ id. नंबर सेकंड, इंस्टिंक्टिव एंड impulsive. Dear students, id is the instinctive and impulsive part of our psyche or personality, which responds directly, immediately to basic urges, needs and desires. id जो है ये instinctive part of our personality है. What is instinct? Instinct is basically inborn tendency possessed by an individual or organism. According to William McDougall का मानना है our behavior is prompted and described by means of instincts. We have
physiological instincts like hunger instinct is, thirst instinct is, and other instincts like sex instinct, aggression instinct, anger instinct. All instincts prompts our behavior. Dear students, as we know that when we will give the eggs of duck to the hen will hatch the eggs of duck. वहां से चूजे नहीं निकलेंगे बल्कि डकलिंग्स निकल जाएंगे. Now question arises, क्या डकलिंग्स hen के बिहेवियर को फॉलो करेंगे? No. No doubt. Ducklings will consider or treat hen mother. लेकिन कतई डकलिंग्स जो है वो hen का बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे. Their behavior will be guided or prompted by means of instincts. मुर्गी किनारे किनारे चलेगी लेकिन डकलिंग्स जो है वो दरिया या नदी में कूद जाएंगे. इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा बिहेवियर जो है ये प्रॉम्प्ट होता है by means of instincts. दूसरी एग्जांपल में देता हूं. When cow gives birth to the calf, तो काफ का बिहेवियर लर्नर नहीं होता है. जो गाय ने चंद सेकंड पहले, चंद मिनट पहले बिजली को जन्म दिया है तो वो इंस्टिंक्ट से उसका बिहेवियर बिजली का डिस्क्राइब होता है. कुछ मिनटों के बाद वो वोम के नजदीक जाता है एंड सक्स द मिल्क, क्योंकि बिजली में ऑलरेडी हंगर इंस्टिंक्ट है. दैट इज व्हाई सिगमंड फ्राइड सेड इट इज बेसिकली इंस्टिंक्टिव एंड इंपल्सिव. इसका काम है किसी भी नीड को फुलफिल करना, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इंस्टिंक्ट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जब भी एक इंडिविजुअल को भूख लगती है वो अपनी भूख को मिटाना चाहता है. बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं ईद जो है इट इज इंपल्सिव. इंपल्सिव मीन्स इट वांट्स टू immediately and quickly fulfill the motives, desires, needs, wills and wishes. कोई भी will and wish जो है ये उसे पूरा करना चाहता है. नंबर थर्ड, unconscious. It is the fully unconscious part of our personality and does not touch with the external world. That is why it fails to differentiate between good and bad, right and wrong, legal and illegal, pure and impure, justifiable and unjustifiable. Dear students, id जो है ये completely unconscious है. How id is completely unconscious? क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होता है एक्सटर्नल रियलिटी के साथ. ईद को भूख लग गई है तो ये चाहता है किसी भी नीड को सेटिस्फाई करना. इसे ये अवेयरनेस नहीं है कि जहां पर भी मैं अपनी भूख को मिटाना चाहता हूं ये इसके लिए राइट रखता है कि नहीं. फॉर इंस्टेंस, ईद को भूख लग गई और इसने बगीचा देखा, बगीचे में इसने फ्रूट देखे. अब सवाल है ईद जब अनकॉन्शियस है, इसमें कोई अवेयरनेस नहीं है, ये नहीं सोचेगा ये मेरा बगीचा है कि नहीं. इसका सिर्फ काम है बाग में जाना और फ्रूट को खाना, यानी कि ओनली फुलफिल्स द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. ये अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ईद इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल, यानी कि ये प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है. ये अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करवाना चाहता है या करना चाहता है. इसका ये नहीं है कि ये मेरा है कि नहीं, मुझे इसमें अधिकार है कि नहीं, बिकॉज इट इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस इन सेंस इसे अवेयरनेस नहीं है. इसने चॉकलेट देखा, ये इसका चॉकलेट नहीं है, ये नहीं सोचेगा ये मेरा नहीं है, बल्कि इसका काम है सिर्फ मजा लेना, टू टेक द प्लेजर, ईट द चॉकलेट. हार्डली मैटर्स ये किसी और का है. तो हम कह सकते हैं इट इज अनकॉन्शियस. नंबर फोर्थ, delinquent. Id dominated personalities or delinquent in nature as always tries to break the norms of the society
violates the rules and regulations of the society for the sake of one's selfish motives and desires. Dear students, साइकोपैथोलॉजी में सिगमंड फ्राइड ने डिटेल्ड नोट लिखा है हाउ इट इज आई मीन टू से यू डेलिक्वेंट, किस तरह से इद डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज डेलिक्वेंट होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, डेलिक्वेंट मीन्स हु इज एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल, यानी कि द पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू break the norms of the society, rules and regulations of the society. इसीलिए जिनमें इद हावी होता है वो ऑलवेज सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ईद ने किसी का बगीचा देखा, वो उसका नहीं है लेकिन इसे भूख लग गई, और ईद डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज इस बगीचे में गए और आम तोड़ लिए या कोई और फल तोड़ लिया और खाया। इट मीन्स वायलेटेड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। कई जगह इसने पैसा देखा, ये इसका पैसा नहीं है लेकिन ये इस पैसे से अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करवाना चाहता है। तो ये डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज ये पैसा चुराएंगे, वायलेटेड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ये थेफ्टिंग में आगे होते हैं, लूटिंग में आगे होते हैं, किसी भी क्राइम में आगे होते हैं। तो हम नटशल में कह सकते हैं ईद डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज आर बेसिकली डेलिक्वेंट। ये क्यों डेलिक्वेंट होते हैं? बिकॉज दे ऑलवेज वायलेट और ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। नंबर 5, एनिमल और बीस्ट इन नेचर। ईद रिप्रेजेंट्स आवर मोस्ट एनिमलिस्टिक अर्जेस like the desires for food and sex. The id-dominated personalities do not bother about whether the needs are fulfilled in right way or wrong way. The unfulfillment of needs results maladaptive behavior and finally activation of thanatos, anxiety, anger, stress, distress, by and large aggression. Dear students, id जो है it is animal in nature. ये एनिमल है। इट इज बीस्ट इन नेचर, इट इज लाइक ए बीस्ट। एक इंडिविजुअल में इद एज ए एनिमल काम करता है, एज ए बीस्ट काम करता है, एज ए डेविल काम करता है, राक्षस होता है। सो फार एज इद इज कंसर्न, इट वांट्स टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। किसी भी नीड को ये फुलफिल करवाना चाहता है, चाहे फिजियोलॉजिकल नीड है, चाहे सेक्सुअल नीड है, या और कोई बायोलॉजिकल नीड है। इट डज नॉट बोदर अबाउट वेदर द नीड इज फुलफिल्ड बाय मीन्स ऑफ गुड वे और बैड वे। ये ईद के लिए मैटर नहीं करता है कि एक नीड जो है ये राइट वे से फुलफिल हो जाएगी या रॉन्ग वे से। इसका काम है सिर्फ नीड को सेटिस्फाई करना। तो इसीलिए ये कहते हैं इट जो है इट इज एनिमल इन मैन, इट इज बीस्ट इन मैन, इट इज डेविल इन मैन। अगर ईद की नीड और डिजायर फुलफिल नहीं हो गया, देन व्हाट विल हैपन? डियर स्टूडेंट्स, जब ईद की नीड एंड डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड, इट गिव्स बर्थ टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक maladaptive behavior। एक इंडिविजुअल को एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी जब ईद की डिमांड फुलफिल नहीं हो गई है। अगर ईद की डिमांड फुलफिल हो गई, चाहे वो राइट वे से हो जाएगी या रॉन्ग वे से, टेंशन जो है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, ये रिड्यूस हो जाएगी। अगर अब नहीं हो गई है, इट विल गिव बर्थ टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड मोर एवर activation of thanatos. Dear students, in the psychopathology, Sigmund Freud ने 2 instincts की बात की है। One instinct is called life instinct. ये नेट JRF में क्वेश्चन आता भी है। 2 instincts of Freudian psychology. तो इसके 2 instincts कुछ इस तरह से है। Life instinct is called eros and death instinct is called thanatos. और इरोस
कब काम करता है, यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट वर्क्स जब ईद की हर एक नीड एंड रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, चाहे फिजियोलॉजिकल नीड है, आई मीन टू से यू हंगर नीड, थर्स्टी नीड, बाय एंड लार्ज सेक्सुअल नीड, चाहे नीड्स गुड वे से फुलफिल हो जाए या बैड वे से, क्योंकि ये बीस्ट इन मैन होता है, राक्षस इन मैन होता है, सिर्फ इसे नीड के साथ आई मीन टू से यू कनेक्शन है या कंसर्न है, और उसके बाद नीड किस तरह से फुलफिल हो जाए दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ ईद। अगर अब नीड फुलफिल नहीं हो गई तो इराज जो है इट विल सिट ऑफ द फंक्शन, लाइफ इंस्टिंक्ट विल सिट ऑफ द फंक्शन, तो नया इंस्टिंक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज नोन एज थैनिटॉस। थैनिटॉस एज पर फ्रूडियन साइकोलॉजी इज नोन एज डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट विल वर्क इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, बाय एंड लार्ज एग्रेशन। तो ये एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली साइकोलॉजिकल स्टेट में लेता है। द ईगो इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी टू डेवलप यूजुअली अराउंड द एजेस ऑफ 2 to 3 years old। डियर स्टूडेंट्स, ईगो जो है ये बाई बर्थ नहीं होता है, जिस तरह से ईद जो है वो बाई बर्थ होता है एक बच्चे के साथ, एक ह्यूमन बीइंग के साथ, लेकिन ईगो जो है इट डेवलप्स व्हेन द चाइल्ड गेट्स बर्थ। कब ईगो डेवलप होता है? एज पर फ्रूडियन साइकोलॉजी इट डेवलप्स एज ऑफ 2 to 3 years। डियर स्टूडेंट्स, वी विल फोकस ऑन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं फ्यूचर्स ऑफ ईगो। नंबर 1, रियलिटी प्रिंसिपल। The ego is the part of our personality that steps in to make sure that its desires are met in effective and appropriate ways. The ego is ruled by the reality principle. That is why ego delays its energy until it can be released at a more suitable time and place. जिस तरह से id प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर सीकिंग पे डिपेंड है, इसी तरह से जो ईगो है इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। ये डायरेक्टली ईद की नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये मौके की तलाश में होता है। ईगो नेवर डायरेक्टली परमिट्स ईद टू सेटिस्फाई नीड और ग्रेटिफाई द नीड, कोई भी नीड, चाहे वो फिजियोलॉजिकल नीड है, चाहे वो सेक्सुअल नीड है, या और कोई बायोलॉजिकल अर्ज है। फॉर इंस्टेंस, ईद को भूख लग गई, वो अब दूसरे के बगीचे से फ्रूट खाना चाहता है, लेकिन ईगो जो है वो डायरेक्टली ईद को यानी कि एलो नहीं करेगा, या हम कह सकते हैं उसकी नीड या डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा। देयर इज चांस वो ईद की नीड और डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकता है, तब तक जब तक कि एप्रोप्रिएट टाइम नहीं होगा, एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं होगी। जैसे कि बागवान बाग में है तो ईद कहेगा कि मैं फ्रूट खाऊं, लेकिन ईगो उसे कहेगा आप इस वक्त फ्रूट नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बागवान वहीं पर है, आपको पकड़ने के भी चांसेस है। तो आपकी नीड या डिजायर फुलफिल होगा जब तक कि बागवान घर नहीं जाएगा। जो ही बागवान घर जाएगा तो उसके बाद आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करो। कोई भी नीड है, चाहे सेक्स रिलेटेड नीड है, चाहे फिजियोलॉजिकल नीड है, चाहे और कोई डिमांड जो ईद की है, वो चोरी की भी सूरत में हो सकती है, स्टीलिंग की सूरत में भी हो सकती है। कोई भी नीड ये अप्रोप्रिएट टाइम ढूंढता है। अप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस ढूंढना किसका काम है? इट इज डिसाइडेड बाय द ईगो। दैट इज व्हाई ईगो इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ये एक्सटर्नल रियलिटी को अंडर कंसिडरेशन लेता है, इस वक्त मौका है या नहीं है, तो एज पर दैट ईगो वर्क्स। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग। ईगो इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी।
as it maintains harmony between the external world. Id and superego. For instance, id compels someone to steal chocolate, but superego prevents someone from stealing chocolate. Ego tells someone they have money, so they can buy chocolate on their own. In this manner, the ego keeps the superego and id in balance. Dear students, हमारी पर्सनैलिटी में एक ही कंपोनेंट डिसीजन मेकिंग का रोल अदा करता है. दैट इज नॉट द इड नॉर द सुपर ईगो, दैट इज ओनली ईगो. इसका काम है डिसीजन लेना, निर्णय लेना. ये ऑलवेज चाहता है कि एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए. एक्सटर्नल रियलिटी मद्देनजर रख के बाय एंड लार्ज द इड and the superego also. For example, id चॉकलेट खाना चाहता है, लेकिन ये चॉकलेट किसी और का है. और सुपर ईगो ऑल्सो कंपेल्स टू द ईगो. id की डिमांड फुलफिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल चोरी का चॉकलेट नहीं खा सकता है. आप रॉन्ग मीन्स से अपनी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, ईद की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हो. अब डिसीजन लेना है ईगो को. ना वो चाहता है ईद को, आई मीन टू से यू, उसकी नीड को अनफुलफिल्ड रहना, ना वो चाहता है सुपर ईगो को निराश करना. तो इसीलिए ईगो ऑलवेज ये तीसरा रास्ता ढूंढता है, ये अल्टरनेटिव्स ढूंढता है, ताकि दोनों बच जाए. ईद की नीड भी सेटिस्फाई हो जाए और सुपर ईगो जो है वो भी निराश ना हो जाए. तो अब ईगो जो है ये ईद को कहेगा, यू हैव आल्सो द मनी, सो यू कैन बाय योर ओन चॉकलेट. आपको चोरी करने की क्या जरूरत है, आप खुद का भी चॉकलेट ला सकते हो. तो इस तरह से ईगो जो है ये डिसीजन मेकिंग का रोल अदा करता है. फुलफिल्स द नीड ऑफ द इड एंड ऑल्सो ये प्रोटेक्ट करता है, आई मीन टू से यू सुपर ईगो को भी, उसे ये निराश नहीं करता है. दूसरी एग्जाम्पल से भी हम इसे समझ सकते हैं. ईद को भूख लग गई, वो चोरी करके यानी कि फ्रूट खाना चाहता है, कोई भी फ्रूट. अब सुपर ईगो कहता है ये चोरी का फ्रूट नहीं खा सकता है. तो अब रास्ता निकालना है, वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज ईगो, बिकॉज इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी. इसे अब डिसीजन लेना है. तो अब ईद को ये कहेगा कि जो नीचे गिरे हुए, आई मीन टू से यू फ्रूट्स है, जमींदारों ने या ग्रोअर्स ने इसके लिए छूट रखी है, जो गिरे हुए फ्रूट है वो कोई भी खा सकता है. तो इस तरह से जो बीच वाला रास्ता ईगो ने निकाला, ताकि ईद की भी नीड या डिमांड सेटिस्फाई हो जाए और सुपर ईगो जो है वो भी नाराज ना हो जाए. तो नटशल में हम कह सकते हैं द ईगो इज वर्किंग ऑन डिसीजन मेकिंग. ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी विद इन एन इंडिविजुअल होती है. नंबर थर्ड, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ईगो इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. इट कंसिडर्स डिमांड्स ऑफ द id which are selfish and illegal, and also considers the reality and morality of the superego. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ईद जो है वो फुली अनकॉन्शियस है, क्योंकि अनअवेयरनेस है, वो रियलिटी के रिलेटेड कोई अवेयरनेस नहीं है. लेकिन जो ईगो है इट इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. किस तरह से जो ईगो है ये कॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस भी है, क्योंकि ईगो जो है ये सेल्फिश नीड्स, या हम कह सकते हैं इलॉजिकल नीड्स मद्देनजर रखता है ईद की, और साइड बाय साइड ये आल्सो सुपर ईगो जो है उसकी भी डिमांड को मद्देनजर रखता है. यानी कि नटशल में हम कह सकते हैं ईगो दोनों की नीड्स को अंडर कंसिडरेशन लेता है. ईद क्या कहता है और सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो इज बेस्ड ऑन द मॉरलिटी. ये मॉरलिटी को भी सपोर्ट करता है, ये सेल्फिश नीड्स भी, इलॉजिकल नीड्स भी ईद की अंडर कंसिडरेशन लेता है.
तो इस तरह से हम कह सकते हैं ईगो इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। नंबर 4, ह्यूमन इन नेचर। डियर स्टूडेंट्स, जो ईद है वो बीस्ट इन मैन है, एनिमल इन मैन है, राक्षस इन मैन है, लेकिन जो ईगो है वो ह्यूमन इन मैन है। और ह्यूमन के दोनों चांसेस होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग राइट काम भी कर सकता है और रॉन्ग काम भी कर सकता है। यानी कि इसीलिए एज पर द फ्रूडियन साइकोलॉजी जो ईगो है इट इज मैन इन मैन, या हम कह सकते हैं इट इज ह्यूमन विद इन एन मैन, क्योंकि ये एक ईद की भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, सेल्फिश डिजायर्स को ड्यू इंपॉर्टेंस देता है, एंड साइड बाय साइड इट आल्सो गिव्स द ड्यू इंपॉर्टेंस टू द मॉरलिटी, जस्टिस, ट्रुथ एंड इथिक्स ऑफ द सुपर ईगो। इस तरह से हम कह सकते हैं ईगो जो है इट इज ह्यूमन इन नेचर। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, दैट इज सुपर ईगो। जो लास्ट आर्म है या लास्ट टायर ऑफ पर्सनैलिटी है दैट इज सुपर ईगो। हाउ द सुपर ईगो works in an individual. Dear students, as per Freudian psychology, सुपर ईगो भी बाय बर्थ नहीं होता है। जिस तरह से ईगो बाय बर्थ नहीं होता है, ये बर्थ के बाद डेवलप हो जाते हैं। दोनों आर्म्स, चाहे ईगो है या सुपर ईगो है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ईगो डेवलप्स एट द एज ऑफ 2 to 3 years, while a super ego develops at the age of 4 to 5 years. तो सुपर ईगो को समझने के लिए we have to also focus on its major characteristics या features. Number 1, morality principle. The super ego is the ethical part of our personality that strives for moral behavior. It is made up of all the internalized beliefs, values and morals that people learn from their parents and the society. Dear students, ईद जो है that is based on pleasure seeking principle. ईगो जो है that is based on principle of reality. But so far as super ego is concerned, it is based on principle of morality. Morality in sense ethics, justice. यानी कि ये ethics और justice पे बिलीव करता है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, ये काम है सुपर ईगो का। नाउ हाउ कंसेप्ट ऑफ द इथिक्स, जस्टिस, ट्रूथ डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल। ये किस तरह से डेवलप होता है? ये बाय बर्थ नहीं होता है, बल्कि व्हेन द चाइल्ड गेट्स बर्थ, और जब उसकी एज 4 to 5 years हो जाती है तो ऑटोमेटिकली by the influence of various social institutions like family, like school, like religion and other social institutions, which plays important role to develop the sense of morality, to develop the sense of truthfulness, to develop the sense of justice in the child. Parents plays important role कि एक बच्चे में good habits develop करना, ethics का concept develop करना, morality का concept develop करना। और same way, school is the disciplined formal institution that also plays prominent role to develop the sense of justice, truthfulness, goodness in the child. इसी तरह से और social institutions है जो morality develop करती है एक individual में। इसीलिए हम कह सकते हैं super ego works on principle of morality. Number 2, consciousness. The consciousness is the part of super ego, is concerned with the things considered bad, inappropriate or immoral. Consciousness जो है it is basically part of super ego. तो इसका क्या काम है? To differentiate between good and the bad, right and the wrong, legal and the illegal, pure and the impure, chaste and the unchaste, justifiable and the unjustifiable. अच्छे और बुरे के दरमियान एक फर्क जानना, सही क्या है, गलत क्या है, ये काम है किसका? सुपर ईगो में एक पार्ट है
जिसे कहते हैं कॉन्साइनस। नंबर थर्ड, ईगो आइडियल। ईगो आइडियल इज अनदर पार्ट ऑफ सुपर ईगो. It means it is the self-image created by an individual. For instance, what an individual wants to become in the eyes of the others. ये वो पार्ट है सुपर ईगो का जहां पर एक इंडिविजुअल अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट करता है. जब एक इंडिविजुअल में मैच्योरिटी आती है, वो सेल्फ इमेज को क्रिएट करता है कि मुझे क्या बनना चाहिए, और ये उस तरह से सेल्फ इमेज क्रिएट करता है विच इज सोशली एक्सेप्टेबल. एक इंडिविजुअल नहीं बनना चाहता है नोटोरियस, राक्षस, बैडमैन. तो इसमें एक हिस्सा है सुपर ईगो में, दैट इज नोन एज ईगो आइडियल. फॉर इंस्टेंस, इफ वी डू नॉट शेयर, then our friends will think we are selfish. Ego ideal believes that sharing is caring. When we share, people think we are nice people, and our character is perceived be good, and our parents would be proud if we share. Dear students, एक इंडिविजुअल जो है उसमें ईगो आइडियल है. वो नहीं चाहता है चोरी करना या सेल्फिश वे से किसी भी नीड को सेटिस्फाई करना, क्योंकि लोग जो है, सोसाइटी मेंबर जो है, वो चोरी को गलत समझते हैं. वो पर्सन जो है उसे इज्जत नहीं मिलती है समाज में, जिसे कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर है, एंटी सोशल एक्टिविटी है, तो उन इंडिविजुअल्स को एक्सेप्टेंस समाज में नहीं मिलती है. इसीलिए ईगो आइडियल जो है ये हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है टू क्रिएट द गुड सेल्फ इमेज. ये रियलिटी को देखता है थ्रू द आइज ऑफ अदर्स. इसे पता है अगर मैं कोई भी गलत काम कर लूं तो लोग नाराज हो जाएंगे, वो मुझे बैडमैन कहेंगे. तो बैडमैन के टैग न लगने से ये अच्छे काम करता है. पेरेंट्स को खुश करने के लिए, प्राउड फील महसूस करने के लिए ये चोरी नहीं करेगा, ये डकैती नहीं करेगा, ये कोई भी एंटी सोशल या अनडिजायरेबल बिहेवियर एक्सप्रेस नहीं करेगा. ये किसका काम है? इट इज ईगो आइडियल. ईगो आइडियल इज नथिंग. ये एक सेल्फ इमेज क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल, व्हाट द पर्सन वांट्स टू बिकम. क्या एक इंडिविजुअल गुड मैन बन सकता है या बैड मैन बन सकता है? तो ईगो आइडियल उसे कभी भी परमिट नहीं करता है कि आप बैड मैन बन जाओ, बट ऑलवेज ट्राइज टू बिकम द गुड मैन. नंबर फोर्थ, कंट्रोल्स id impulses. The super ego controls id impulses, especially those which are socially forbidden, such as stealing, looting, sexual harassment, killing, aggression, etc. सुपर ईगो का काम है ईद के इंपल्सेस को, ईद के अनडिजायरेबल बिहेवियर को, ईद के सेल्फिश नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल करना जो सोसाइटी ने फॉरबिड किए हैं, लाइक स्टीलिंग. स्टीलिंग इज नॉट परमिसेबल इन द सोसाइटी. मर्डर इज नॉट परमिसेबल इन द सोसाइटी. तो सुपर ईगो का काम है ये कंट्रोल राक्षस को करता है, डेविल को करता है, एनिमल को करता है. वो अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स रॉन्ग तरीके से फुलफिल नहीं कर सकता है. दिस इज द रोल विच इज प्लेड बाय द सुपर ईगो. चाहे आई मीन टू से यू सेक्सुअल हरासमेंट है, मर्डर है, स्टीलिंग है, थेफ्टिंग है, ये ऑल जो डिजायर्स और विशेस ईद की है ये कंट्रोल सुपर ईगो करता है. ये इसे कभी भी एलो नहीं करता है कि आप अपनी नीड्स को रॉन्ग मीन से फुलफिल कर लो, अपनी विशेस को यानी कि गलत तरीके से फुलफिल कर लो. नंबर फिफ्थ, एबनॉर्मल पर्सनैलिटीज. डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, सुपर ईगो डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज आर एबनॉर्मल. नाउ क्वेश्चन arises, हाउ सुपर ईगो डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज आर एबनॉर्मल? क्योंकि सुपर ईगो जो है इट इज फुली कॉन्शियस. ये हमारी पर्सनैलिटी में अवेयरनेस पार्ट है. इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड द बैड, राइट एंड द रॉन्ग. तो फिर भी किस तरह से फ्राइड कहता है सुपर ईगो डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज आर एबनॉर्मल? अगर हम सिगमंड फ्राइड के कंट्रीब्यूशन पे नजर डालेंगे, साइकोपैथोलॉजी इज द बुक रिटन बाय फ्राइड. रिलीजन एंड टोटेमिज्म इज द बुक रिटन बाय फ्राइड. इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज रिटन बाय द फ्राइड. The Psychopathology is one of the famous books of Sigmund Freud. Dear students, in this book, Sigmund Freud beautifully described
एक ह्यूमन बीइंग जो है इट इज मल्टीफेसेट रियलिटी, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स आर मल्टीपल बीइंग्स। हम ये नहीं कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली सोशल बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स। अपार्ट फ्रॉम सोशल एंड स्पिरिचुअल बीइंग्स, human beings are biological beings, emotional beings, physical beings as well. Then we have to satisfy each and every being. For instance, एक human being जिसमें सुपर ईगो डोमिनेटेड है, वो किसी भी नीड को फुलफिल करना चाहता है क्योंकि वो बायोलॉजिकल बीइंग भी है। सुपर ईगो डोमिनेटेड पर्सनैलिटी को भी भूख लगती है, अब भूख को मिटाना है, लेकिन उसे लीगल तरीके से नहीं मिलता है खाना, या किसी भी नीड को वो सेटिस्फाई करना चाहता है, वो लीगल तरीके से फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं होती है। एट दैट टाइम व्हाट द सुपर ईगो डोमिनेटेड पर्सनैलिटी विल डू, वो क्या कर सकता है? इलीगल वे वो इख्तियार नहीं कर सकता है, बिकॉज क्योंकि उसमें सुपर ईगो डोमिनेटेड है। गॉड इन मैन जो जस्टिस पे बिलीव करता है, ट्रूथ पे बिलीव करता है, लीगलिटी पे बिलीव करता है, तो अब क्या करेगा सुपर ईगो डोमिनेटेड पर्सनैलिटी? द सुपर ईगो डोमिनेटेड पर्सनैलिटी विल क्रश द नीड एंड डिजायर फॉर द सेक ऑफ मॉरलिटी, फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, फॉर द सेक ऑफ इथिक्स, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस के खातिर वो अपनी नीड को सेक्रीफाइस करता है। तो इसीलिए सिगमंड फ्राइड कहता है एक तरह से वो अपनी नीड को, बायोलॉजिकल नीड को, फिजियोलॉजिकल नीड को, किसी भी नीड को सेक्रीफाइस करता है क्योंकि लीगल वे से नहीं हासिल हो चुका। तो दूसरी तरह से जब हम किसी भी नीड को क्रश करते हैं, इट गिव्स बर्थ टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक एंजाइटी, लाइक स्ट्रेस, लाइक अदर टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज। इसीलिए सिगमंड फ्राइड कहता है सुपर ईगो डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज आर एबनॉर्मल बिकॉज दे sacrifice or crush their desire or need for the sake of justice, for the sake of truth, for the sake of honesty, for the sake of ethics. Number 6, saint in nature. Dear student, super ego personalities are saint in nature. ये एक इंडिविजुअल में गॉड होता है, देवता होता है। इसका कैरेक्टर जो होता है वो ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है, ये सपोर्ट ट्रुथ को करता है, इथिक्स को करता है, जस्टिस को करता है। द सेंट इन नेचर मीन्स वेरी मच पायस एंड होली, जो अपनी लाइफ गुजारता है विद सर्टन वर्च्यूज लाइक इथिक्स, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द सेंट। एंड बाय एंड लार्ज हु सैक्रिफाइस one's own need and desire for the sake of others, जो अपनी खुशियां दूसरों पे कुर्बान करता है। That's why the person is known as saint in nature. Keeping in view the Sigmund Freud's psychoanalysis, सुपर ईगो जो है ये सेंट इन नेचर एक इंडिविजुअल में होता है। जिस तरह से ईग जो है वो एनिमल या बीस्ट इन नेचर है, जिसे हम राक्षस या शैतान भी कहते हैं, और ईगो जो है वो ह्यूमन इन नेचर है, यानी कि वो अच्छा काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है। लेकिन सुपर ईगो जो है इट इज सेंट इन नेचर, इट इज गॉड इन नेचर। ये देवता बसता है, खुदा बसता है एक इंडिविजुअल के अंदर। इट नेवर परमिट्स टू एन इंडिविजुअल कोई भी नीड या आई मीन टू से यू डिजायर गलत तरीके से फुलफिल होना चाहिए। ये ऑलवेज सही रास्ता अडॉप्ट करता है, अपनी खुशियां जो है दैट सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ अदर्स। इसीलिए इन 3 टायर्स ऑफ पर्सनैलिटी में सुपर ईगो को कहते हैं सेंट इन नेचर, या आप कह सकते हो गॉड इन नेचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय सिगमंड फ्राइड, जिसमें हमने 3 आर्म्स डिस्कस किए, id, ego and super ego. In next lecture we will focus 3rd important part, that is entitled as the psychological disorders possessed by the individual. किस तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं व्हेन देयर इज क्लैश बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इफ यू रियली एंजॉयड माय लेक्चर, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.